Hello everyone. Few days back, I created a video and it was inspired from a question of one of my mentee. She was having a lot of negative somatic charges in her body. It included fat fatigue as well, and she desperately wanted to, you know, let go of some excessive emotional workload. Of course, because of clientele. Okay, and I got riled up because a lot of us professionals who are entering fields, high volume fields like as a school counselor or working in hospitals, we are not getting prepped, we are not being told how to protect ourselves from the onslaught of the emotional workload. ठीक है, ये प्रोफेशन नहीं वैसा है ना. दिस प्रोफेशन इज नॉट समथिंग that runs on unlimited resources. Every single person gets like a limited amount of hours, and vital energy is also limited. So in order to earn money, or in order to have a full-fledged career, we need not drain ourselves, and we are not taught, never by our parents, not even by our universities, how to regulate our energies. Well, everyone is talking about time management, resource management, human resource management. They are not talking about energy management. And energy management is not something that you learn, right? It's not a system that you follow. It's something that you learn and sync with to your true blueprint. आपकी खुद की एक energy blueprint है. I wanted to Google human design. Do Google human design. I am not an expert in this, but I stumbled upon this particular concept where they are talking about a particular kind of an energy dynamics every single person has, and they have grouped people under four sections. Okay, so if you align with your original energy blueprint, okay, then you become more productive, efficient, in fact. Okay, sustainability is also there. So today's video is about protection as a psychologist. When you are entering, into this field, when you are practicing in this field, you have to see lots of cases, clients who have overwhelming unconscious. Their unconscious material, their neurosis is so overwhelming, and though psychoticism is also so much overpowering, that your nervous system and their nervous system are going to sync, right? By the virtue of being in the same room, your nervous system syncs. So your nervous system is going to collect, catch, try to process it in its own field. And this is how you are going to get embroiled in a lot of energy dynamics, hidden unconscious energy dynamics that will impact a therapeutic relationship, short term, long term, and then it will start to look like a physical issue in your body. It also percolates to your relationship dynamics as well. ओके, तो हम ज़्यादा इसमें घुसेंगे नहीं कि इसमें क्या होता है, क्यों होता है. मैं मैटर को स्मॉल करके रख के ये बोलूँगी कि टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा प्रोटेक्शन कौन करेगा, क्योंकि देयर इज़ नो लॉ टू प्रोटेक्ट मी, राइट? एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. आई नो फ्यू थिंग्स एंड आई एम जस्ट देयर, राइट? तो क्या करना है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिक प्रोटेक्शन. साइकिक मतलब अपनी साइकी का प्रोटेक्शन हमें सीखना है. I will bring some conventional and unconventional methods. Okay, and mind you, in hypnotherapy we were trained to protect ourselves. The first thing they taught us is to protect ourselves so that we do not enter into energy manipulations from either side. ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, व्हेन वी आर
learning psychology, they don't tell us what psychology essentially means. आप इसको पढ़ के क्या कर रहे हो, क्या करना है आपको इसका, ये नहीं बताते. So understand something, without having a philosophy you cannot have a system. So today I'm going to break some of the philosophies जो आज हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं. हमें बताया जाता है एज अ मेंटल हेल्थ सर्विस सेक्टर. Right, when you go and you tell people what you do, you say these are my services, right? So I also used to be in this particular kind of a myth कि मैं तो सर्विस दे रही हूँ, right? So I have a hypnotherapy service, I do inner child therapy as a service. No, it is not a service field. बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, ये सर्विस फील्ड नहीं है. यहाँ सेल्फलेसनेस नहीं. आप सर्विस का मतलब है कि मैं कुछ करता हूँ या करती हूँ एंड देन इट्स आई एम सर्विंग समथिंग. नो, आई एम नॉट सर्विंग एनीथिंग और एनीवन. वी एक्चुअली बिलोंग टू वेलबीइंग फील्ड. मेंटल वेलबीइंग, फिजिकल वेलबीइंग. वेलबीइंग इज अ होलिस्टिक अप्रोच. सर्विस इज नॉट. सर्विस में क्या, आप बोलते ही आपके दिमाग में एक बुद्धि है ना कि ये चल रहा है कि सर्विस, जो स्कीमा आपके जो आपके एक्साइट हो जा रहे हैं वो क्या है कि मैं करूँगी आपके लिए. आप बताइए प्रॉब्लम क्या है, हम उसको सॉल्व करेंगे. नो, दिस इज़ द वेरी बैड वे. इसमें सिर्फ आप ड्रेन होने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो. नहीं नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं ये करूँगा. नो, तो वी बिलोंग टू वेलबींग फील्ड एंड वेलबींग इज अ concept where if I don't practice mental, emotional, psychological and other energy well-being, don't practice it but only give, तो ये वेलबींग का आता ही नहीं है. तो वेलबींग में आई प्रैक्टिस. यू आर अ मेंटल हेल्थ practitioner, you are a psychologist because you understand psyche, right? You understand the dynamics of the psychological contents, how it impacts life. Remember, philosophy is the mother of all sciences and psychology is a daughter of philosophy. तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी को के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है. तो आपको अपनी फिलॉसफी लाइफ की सबसे पहले स्ट्रेट आउट करनी पड़ेगी. अदरवाइज यू विल बी लाइक समवन रोमिंग अराउंड इन अ डिजर्ट लुकिंग फॉर वाटर with no path, no सेल्फ नेविगेटिंग सिस्टम और अ गाइडेंस सिस्टम. सो एक फिलोसफी आपकी बहुत ज़रूरी है. एंड आई वर्क विद द फिलोसफी ऑफ वेलबींग. वेलबींग इज अ होलिस्टिक एस्पेक्ट. इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स एंड इट टेल्स मी दैट आई हैव टू बी वेल फर्स्ट. आई नीड टू बी प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट. अगर मेरा नर्वस सिस्टम साउंड नहीं है, मुझे नहीं पता अगर डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा तो मैं अपने आप को कैसे कोर्स करेक्ट करूँगी. तो मेरे क्लाइंट का हर एक चीज़ तो मुझे इम्पैक्ट कर जाएगा, राइट? तो आई नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग, राइट? तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, रिमेंबर वन थिंग, वी विल ब्रिंग इट टू द फिजिकल लेवल फर्स्ट. बिकॉज रिमेंबर, इफ यू टच द फिजिकल लेवल फर्स्ट यू आर गोइंग टू ब्रिंग मैक्सिमम रेजोल्यूशन. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसे ग्रंथ में लिख के रख लेनी है, अपने डायरी में लिख के रख लेनी है कि अगर मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स को पहले एड्रेस करूँगी एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैक्सिमम इश्यूज कैन बी रिजॉल्व. क्यों? क्योंकि बॉडी इज द फीडबैक. यू आर गोइंग टू यूज द रिसोर्सेस ऑफ योर बॉडी along with the mind, but mostly body, because आप बोलोगे तो body यूज करोगे, vocal cords यूज करोगे, right? You're not going to telepathically work out issues, right? So you are using the body. The first thing that you have to do is catch enough vitamin D. Always make sure you have consistent amount of vitamin D. आप एक प्रोफाइल टेस्ट भी करा सकते हो अपना. मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि सिम्टम्स बड़े विटामिन डी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स ना बहुत ऐसे प्रत्यक्ष तो नहीं होते, मिंगल्ड होते हैं ऑफ कोर्स. बट विटामिन डी इज समथिंग कि आपके पास है इशू नहीं है, डजेंट मैटर. यू शुड ऑलवेज गेट सन. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, आई एम सेइंग गेटिंग सन. सो ऑलवेज द राइजिंग सन
कहा जाता है ना, द इमर्जिंग सन, उसकी जो लाइट है आपको अपनी बॉडी में लेनी है। तो नाउ व्हेन यू आर कैचिंग विटामिन डी, यू शुड नॉट बी हैविंग एनी ऑयल, एनी सनस्क्रीन ऑन योर स्किन। सुबह का मंद मंद जो उसके लाइट आते हैं सन के, उसे बस देखना है। वाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू रीस्टार्ट एंड सिंक योर नर्वस सिस्टम विद द सर्काडियम रिदम। सर्काडियन रिदम, रिदम कहा गया है, वो रिदम ऑफ लाइफ है, रिदम ऑफ एनर्जी है। इट इज हाउ योर एवरी सिंगल organ in your body, vital and other organs of your body process energy। कहाँ से लाता है ये एनर्जी? देखो, आपके किडनी में ऑलरेडी आपको कुछ एनर्जी मिली होती है। द किडनी एक्चुअली स्टोर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसको हम पेरेंटल एनर्जी कहते हैं। बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन टू अ पर्टिकुलर कपल, वी इनहेरिट ची बोलते हैं, राइट? वो एनर्जी हम इनहेरिट करते हैं, तो उसमें तो हम चल रहे हैं, बट उसको किक स्टार्ट करना, उसको वो इंजन को ड्राइव करने के लिए जो हमें चाहिए, और रात की जो कंटेंट हमने ख़त्म किया, जो प्रोसेस करके ख़त्म किया, उसको वहाँ ख़त्म करके रखने के लिए और नया शुरू करने के लिए देयर नीड्स टू बी अ ट्रिगर, एंड द ट्रिगर इज सन। ओके, तो क्योंकि सन हर दिन आता है, हर दिन डूब रहा है, दैट actually makes us believe in कि now we can start today and we can end। तो the ending right, जो हमारे यहाँ पे सनातन में क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश का साइकिल, तो वो that cycle they end, and साइकिल को स्टार्ट करने के लिए we need the sun। तो सन के साथ हमारे आँखों का बहुत गहरा रिश्ता है, ठीक है? तो वो जैसे ही वो ट्रिगर हुआ, लाइट एंटर करी, यहाँ पे घुसेगा, तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये बात नहीं है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ये है वो है, नहीं। एनी पर्सन हु इज कैचिंग विटामिन डी इज अलाइनिंग देमसेल्फ विद द सन साइकिल्स, ओके? एंड सन इज कंसिडर्ड एज द फादर, आर्किटाइपल फादर। फादर मतलब someone who gives energy, who gives। so when you are aligning with the giving principle, है ना, क्योंकि वो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, वो अलाइनिंग विद द गिविंग प्रिंसिपल ऑफ द सन, तो यू आर फिलिंग योर सेल्फ विद रिसोर्सेज, एक्टिवेटिंग अ लॉट ऑफ सन प्रिंसिपल इन योर बॉडी। ओके, तो ईड़ा पिंगल वाली बात आ जाती है, ठीक है? तो वो सब आप एक्टिवेट करते हो। प्लस विटामिन डी के वजह से क्या होता है कि यू आर केपेबल ऑफ गिविंग एनर्जी, एग्जैक्ट अमाउंट जितना आपके क्लाइंट को या किसी एक चीज़ को चाहिए। तो आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे ये अंग का क्या करना, वो अंग का क्या करना, उतना नहीं करना। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपके बॉडी में ऑलरेडी उसकी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, आपको बस सुबह उठ करके वो सूर्य देखना है, ठीक है? विटामिन डी। The second thing that I say is always make sure you have enough mineral resources। अब ये देखिए पूरा इंडिविजुअल हो जाएगा, सबके अलग अलग मिनरल डिफिशेंसीज होते हैं। पीपल हु आर गिवर्स, जो बहुत ज़्यादा इमोशनली एंटैंगल हो जाते हैं, को डिपेंडेंट लोग होते हैं, उनकी अक्सर मैंने नोटिस किया है, अगर वो एनेमिक भी होते हैं तो उनके पूरे खानदान में ही आयरन एज अ रिसोर्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो जाता है। मतलब आयरन लेते होंगे खाने में, पर वो बहुत सबसे पहले यूज हो जाता है, क्योंकि उनको लाइफ में स्ट्रगल करना है, सर्वाइव करना है, तो they deplete iron resources a lot। तो if you are someone, because I used to be one of them, तो if you are someone who is depleting magnesium resources a lot, iron a lot, calcium a lot, ठीक है, तो आपको ध्यान में रख के उसको अपने डाइट का ऐसा अभिन्न अंग बना के रखना है कि you are always stocked with resources in your body। उसे हमें डाइट में लेके आना है। मैंने कहा फिजिकल प्लेन सबसे पहले सेट करिए, आपकी ज़िंदगी के बाकी सारे जो पहिए हैं वो चलने लग जाएंगे। मिनरल्स पे फोकस करिए, ठीक है? द थर्ड थिंग इज़ वाटर। ओके, पानी का बहुत ज़रूरी आपके लाइफ में है। वाटर का आपको अपना TDS चेक करवा लेना है अपने घर का वाटर में, क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। अगर वो मिनरल्स वाटर में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप TDS किससे चेक करवाएंगे? यू विल गेट इट विद द प्यूरीफायर। जो कंपनीज होते हैं, जो आस्क दो सर्विस प्रोवाइडर्स, दे विल गिव यू अ TDS चेकिंग। आप अपने लोकेलिटी का TDS चेक करके अपने वाटर प्यूरीफायर का आप उसमें कंट्रोल करवा सकते हो। गेट इन्फॉर्मेशन, TDS गूगल करो, अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड गो फॉर इट। 3 चीज़ें आपकी लाइफ की हो गई। एक, सूर्य आपने सेट कर लिया अपना, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को मिनरल्स एंड विटामिन्स
देना शुरू किया, आपने उस तरफ भी अपना ध्यान दिया, तीसरा है पानी। ये 3 चीज़ें आपकी जब हो जाती हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू लर्न अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, और ये करके आपको अपने काम पे बाहर निकलना है। ओके, इफ यू आर नॉट स्टॉक्ड विद योर इनर रिसोर्सेज, फिजिकल एंड इमोशनल रिसोर्सेज, तो आप क्लाइंट को क्या दोगे, है ना? क्लाइंट ले लेता है। क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि व्हेन यू आर अ स्कूल काउंसलर और यू आर टेकिंग केसेस ऑफ एडिक्शन और समवन हु इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मैरिटल इश्यूज, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रॉब्लम चल रही है, उसका वर्कलोड आप पे ज़्यादा हैवी है। आपको लग रहा है एक क्लाइंट है, नहीं, कहानी तो 2-3 जनरेशन की है, कहानी तो विस्तारित है, फैला हुआ रहता है। आप अकेले बैठ के समेट रहे हो विथ अ क्लाइंट हु डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस होल्ड ऑन देयर एनर्जेटिक कंटेंट्स। तो आप पे काम पड़ रहा है, तो आपको तो मतलब होना पड़ेगा उतना स्ट्रॉन्ग, राइट? एंड यू नीड टू हैव योर ओन लाइफ टू सर्टन डिग्री ऑफ अलाइनमेंट एंड इंटीग्रिटी, अदरवाइज यू विल पेरिश। तो अंधा समाज में सब अंधे, राइट? तो वी आर नॉट सपोज टू गो इन टू दैट। हमें ये करना नहीं है, तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना है। बिना ये सब चीज़ को मेंटेन किए please don't enter into this field. If you don't know this, you are only in a service field where you are going to consistently get depleted every single day. Depleted का क्या मतलब होता है? Ideally, जब आप सुबह उठो, आपके पास एनर्जी होती है to start the day. And as you start the day, you engage in certain activities that give you the sustaining energy. ठीक है, शुरुआत हो गया ब्रह्मा से, ठीक है? So now the sustaining energies are also getting engaged because you are indulging in certain activities. जैसे क्लाइंट देखा, क्लाइंट के साथ काम करते वक्त ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, because I am doing something very fulfilling to my own inner purpose. That is giving me a bolt of energy. That's sustaining energy. I am drinking water, I am having lunch, I am having breakfast. Sustaining energy. Sustaining energy आप कर रहे हो तो आपको वो दिन में मिलता है. Now you end that. एंडिंग में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बट यू रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अलाउ यू टू स्लीप. रेस्टिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए, बट आवर जॉब्स आर क्रिएटेड इन सच अ वे दैट रेस्टिंग की एनर्जी, जो पोटेंशियल हमारा एक्टिवेट होना चाहिए, वो होता ही नहीं है. वी आर थिंकिंग ऑफ अनदर डे इवन दो द डे हैज़ नॉट एंडेड. तो स्लीप डिप्रिवेशन और क्लाइंट के साइकोलॉजिकल कंटेंट्स भी हमारे अंदर आ जाते हैं. तो वी आर ऑल्सो रीप्लेइंग दोज थिंग्स इन आवर हेड, राइट? तो यहाँ हमारी बाउंड्रीज ब्रीच है, साइकिक बाउंड्री ब्रीच है, इमोशनल बाउंड्री ब्रीच है, फिजिकल एनर्जीज हेवायर हो गए. ये ऐसा नहीं करना है. तो रात को सोने के लिए जो एनर्जी चाहिए ताकि हम सो पाएँ, ये बोलने के लिए काम हो गया भाई अब सो सकते हैं, दैट will define if your day went successfully or not. It's not about how many clients you saw in a day. It's also not about how much progress one of or few of your clients had, how much you learned in your life. No. If you started a day with a fresh energy and you ended the day successfully, you could sleep deep, then you had a successful day. दैट्स द एनर्जी प्रिंसिपल. बाकी जितने प्रिंसिपल आदमी ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, वो है, बट दैट्स द एनर्जी प्रिंसिपल, राइट? नाउ आई एम गोइंग टू कम टू द नेक area. See, we are psychologists and we listen to a lot of stuff. Sometimes we have to keep their secrets as well. कहा जाता है कि जो लोगों का जो ये अपर लिप है ना, ये अगर पतला होता है, थिनर देन द लोअर लिप, they are very good secret keepers. So the secret keeping, where do we keep the secrets? Generally the neck is like an antenna, okay? The throat chakra area, it is like an antenna. So we speak, we take the energies in our ear, okay? We listen,
then you bring it in your throat. So you will notice a lot of people who are holding on to secrets, they either have thyroid issues, neck में आपको टेंशन होता होगा जब भी आप सुनते हो ना अपने क्लाइंट को, और अगर आपको नेक में, इस वाले मसल में, कॉलर बोन वाले मसल में, नेक में, यहाँ जॉज में आपको अगर टेंशन रहता है, तो यू आर समवन हु स्पीक्स लेस, लिसन्स मोर, होल्ड्स मोर बाय द वर्च्यू ऑफ दैट। ठीक है, तो हम दिल में जो सीक्रेट्स रखते हैं वो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, बट जब हम दूसरों के सीक्रेट्स रखते हैं या दूसरों की बातों के जो कंटेंट है उसको रखते हैं, तो हम नेक में रखते हैं। ऑल्सो यू विल नोटिस अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव न्यूरोसिस ना, जो न्यूरोटिक क्लाइंट्स होते हैं, जो ओवर थिंक करते हैं, उनका वो भी आपको ना, अगर आप उनकी सोमैटिक डिस्टिल करोगे तो दे विल टेल कि दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टेंशन इन देयर दिस नेक मसल। तो हमको बहुत सुनना होता है ना, तो ये वाला एरिया, ये ऑक्सीपिट वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया हमारा बहुत अफेक्टेड रहता है। तो यू हैव टू लर्न टू स्ट्रेच योर नेक, कीप इट लूज। ठीक है, ओ गॉड नॉट ओनली नेक, आपका जो द वी एरिया ऑफ योर बैक, योर अपर बैक, जो आपकी सर्वाइकल वर्टेब्रा है, वहाँ भी आप इमोशनल लोड लेके रखते हो। तो ना, जब हम लोग सोमैटिक स्कैनिंग करवाते हैं, ऑरा स्कैनिंग कराते हैं या बॉडी स्कैन करवाते हैं, तो वी जनरली डू इट टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर प्रोन टू होल्ड इमोशंस as others, and which muscle group in our body, which areas of our body are actually bearing the brunt of it. तो लोग जो बहुत इमोशनल एम्पथेटिक लोग होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एम्पथेटिक होते हैं, ये सुनना चाहते हैं, दे आर एक्सटेंडिंग देयर स्पेस टू अलाउ द कंटेंट्स एंड होल्ड द कंटेंट्स ऑफ द क्लाइंट, अदर पीपल, है ना। तो एक्सटेंशन के दौरान क्या होता है कि आपको मिलता कम है, आप देते ज़्यादा हो। सो देर मे बी अ टेंडेंसी ऑफ हैविंग more affected areas in one particular side of your body. If you are someone who is receiving less, holding more, तो लेफ्ट साइड आपका मैक्सिमम अफेक्टेड रहेगा। ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा जो है ना कि आप ऐसे इंसान हो जो अपने इमोशंस दूसरों पे थोपते रहते हो, तो आपके राइट साइड, जिसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इश्यूज हैं, तो वो आपके राइट साइड में आपको ज़रूर शो करता है। जो भी है, कुछ लोग अपने मैक्सिमम गिल्ट जो हैं किडनी में स्टोर करते हैं, किडनी स्टोर्स गिल्ट, पेरेंटल गिल्ट, कि मैं अपने पापा पे क्यों गुस्सा कर गया, मैंने अपने पापा की बात नहीं समझी, मम्मी की बात नहीं समझी। तो पेरेंटल गिल्ट जो होता है वो हमारे किडनीज में अटकता है। तो लोअर बैक इश्यूज बहुत लोगों को आप नोटिस करते हो। इफ़ यू आर समवन हु होल्ड सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज इन द बॉडी, यू नीड टू डू अ बॉडी स्कैन फर्स्ट। ठीक है, बॉडी स्कैन कैसे करना है, आप शांति से बैठेंगे, इन द मॉर्निंग यू डू इट, ओके, और व्हेन यू आर रिटायरिंग फॉर द डे, जब आपका दिन खत्म हो रहा है तब भी एक बार आप बॉडी स्कैन करेंगे टू चेक विच मसल्स आर सोर, वेयर यू आर फीलिंग द नीड टू लूजन अप, कहाँ टाइटनेस है, कहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहा है मूवमेंट में, कहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। सी देर आर लॉट ऑफ पीपल, द न्यूरो डाइवर्जेंट पीपल, दे ऑल्सो हैव हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनके गर्दन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, जहाँ जहाँ आर्चिंग है ना, एक गर्दन के हमारे सर्वाइकल में है, एक लंबर एरिया में, तो दैट एरिया इज ऑल्सो हाईली मोबाइल। तो इनको ना, आप पता है कि नहीं, बहुत लोगों ने अपने बॉडी चेक की है कि नहीं की है, बट दे आर पीपल हु हैव हाइपर मोबाइल, बिकॉज ऑफ विच उनको रैंडम पेन्स होते हैं स्पेसिफिक एरिया में, और उनको जितना उसको सेटिंग कराएंगे ना, उतनी बार वो ख़राब होते हैं, क्योंकि वो लोग हाइपर मोबाइल, हाइपर एक्टिव मसल ग्रुप्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उस ग्रुप पे काम कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो पहला बॉडी स्कैन करिए, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी डायनेमिक्स को समझिए। ओके, वी टीच दैट टू ऑल ऑफ माई ट्रेनीज। जो इतने बच्चे मेरे अंडर पढ़ाई करते हैं, उनका काम होता है कि दे डू अ बॉडी स्कैन, ओके, टू लिस्ट आउट वो कहाँ इमोशंस स्टोर करते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो डू दिस while you are taking cases। तो
कभी कभी चेक कर लीजिए टू कम बैक टू योर एनर्जी फील्ड। क्यों? क्योंकि एम्पैथी में क्या होता है, हमें दूसरों की एनर्जी लेनी होती है, कभी कभी लेने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं, उनके फील्ड के अंदर घुसने लग जाते हैं समझने के लिए। सो व्हाट हैपेंस, द साइकिक बाउंड्री ब्लर्स, और कुछ एनर्जी जो हमने अपनी बॉडी में होल्ड की वो हमारी नहीं होती, वो उनकी होती है। हमारे कुछ बॉडीली सेंसेशंस है वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, दे शो अप लेटर, सो पीपल कॉल इट अ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव सोमैटिक चार्जेस। आई से दिस इज बाउंड्री ब्रीच इश्यूज। आपने बाउंड्री ब्रीच कर दी, ठीक है। माई सुपरवाइजर यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद अस कि ये कैसे तुमने किया। शी यूज टू लुक एट अ बॉडी लैंग्वेज एंड से ओके नाउ दिस इज रॉन्ग, you have to let your client be in their space. Why are you entering into this field? You don't know how to maintain your own field. How are you going to take care of your clients? Okay. तो वो आपको थोड़ा सा रखना पड़ता है, और उसी में आपको नोटिस करना है कि विच ईयर यू आर यूजिंग मोर, आर यू लीनिंग इन, आर यू लीनिंग आउट, which muscle group is getting bearing the brunt of your activities, ठीक है। क्या नेक मसल्स आपके भारी हो रहे हैं, तो दीज आर सिग्नल्स, दे आर सिग्नल्स कि आपकी बाउंड्री ब्रीच हो रही है। आपने अपनी भी कर दी है बाय द वर्च्यू है, आपने अपने क्लाइंट की भी कर दी है, तो आप उसको कोर्स करेक्ट करते हो, ठीक है। जन्म जन्म से जो कर रहे हो, ठीक है, बट वाइल यू आर एंगेजिंग विद द क्लाइंट यू नीड टू बी अवेयर एज वेल। तो हम आज थोड़ा सा स्मॉल नेक रोटेशन के बारे में जानेंगे। तो ये नेक एरिया, क्योंकि मैंने कहा इमोशनल वर्कलोड हमको ज़्यादा होता है, ये चेस्ट वाला जो एरिया दिस वी एंड देन बैक ऑफ आवर, ये यहाँ पे बहुत हमको, गॉड ब्लेस, वहाँ हम स्टोर करते हैं इमोशंस। तो उसको रिलीज करने के लिए आप प्लीज़ थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस करते रहिएगा। आई एम गोइंग टू गिव यू स्मॉल नेक रोटेशन एक्सरसाइज। द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज ब्रीद इन, tilt your head back, hold, come back to your neutral position, release your breath. Okay, then we will bring our head down, touch our chin to our this collar. While doing that, we will inhale, touch your chin to the collar, hold your breath, come back to your neutral position, exhale. Okay, so we are what we are doing, we are inhaling lies, inhaling is to bring fresh oxygen, ठीक है। होल्डिंग का क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन और जो भी अभी एनर्जी यहाँ पे स्टक है वो दोनों मिक्स होती है, ठीक है। एंड व्हेन वी आर एक्सेलिंग एंड कमिंग टू द न्यूट्रल पोजिशन, वी आर रिलीजिंग द थिंग्स दैट आर नॉट नीडेड इन आवर थ्रोट। Similarly, we will go for the left and the right, okay। तो inhale, hold, exhale, so I'm holding a lot of tension in my left, that's why I used I exhaled from my mouth. I'll do it for the right side as well. Inhale, hold, exhale. Right? So instantly you will feel, okay, now the energy is swirling in my ears and my temple and the back of my head. Yes. You have to be aware of your bodily sensations. The more you are aware of your bodily sensations, more grounded you are. तो आप नोटिस करोगे जो न्यूरोटिक क्लाइंट्स होते हैं उनको बॉडीली सेंसेशंस ओवरवेलमिंग होते हैं, उससे भागते रहते हैं वो लोग, है ना। तो ग्राउंडिंग में हम उनके सेंसेस इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो द मोर यू आर कनेक्टेड टू योर बॉडीली सिस्टम सेंसेशंस, मोर प्रोटेक्टेड यू आर। आपको आउटसाइड प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, आपकी बॉडी आपको बताती है आप कहाँ गलत कहाँ सही कर रहे हो।
ओके। एक और चीज़ क्या होती है, बिकॉज यू आर लिसनिंग 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 एंड यू हैव टू बी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स, एंड दिस प्रोफेशन इज सच दैट you have to listen more, speak less, you feel misunderstood in your life. वुंडिंग्स तो आपके होंगे, ठीक है, मानती हूँ, अदरवाइज आप इस प्रोफेशन में तो नहीं आते। तो मिसअंडरस्टैंड, मिस नॉट हर्ड इनफ, इस तरह के आपके कोर वुंड्स पक्का होंगे, अदरवाइज आप थ्रोट चक्र ओरिएंटेड फील्ड में तो नहीं आते, इमोशनल ओरिएंटेड फील्ड में तो नहीं आते। तो इससे आपको खुद को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम दूसरों के साथ ज़्यादा हो गया है, इससे आप कमा रहे हो, इसमें आपकी मैक्सिमम एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है। तो क्या होता है, हम ना भूल जाते हैं कि हमारे मन की आवाज़ क्या बोल रही है, हम क्या बोलना चाहते हैं। तो यू हैव टू स्पीक योर सेल्फ टू योर सेल्फ इन अ लाउड वॉइस, लाउड इन द सेंस ऑडिबल वॉइस में आपको बोलना है। तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट आई डू इज गो फॉर अ सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी में क्या होता है, आप अपने आप से बात करते हैं, गले गले में बात मानसिक बातें नहीं करनी है, यूज़ करना है अपना वॉइस, अपने आप से बात करनी है, करते रहना है करते रहना है, कंटेंट बाहर निकालने के लिए बात करना। मुझे ये महसूस हुआ, ये हुआ, फिर मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, इट्स लाइक अ रिव्यू यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, ओके, and then finally boil down to what you require, what you need, okay? I want this, bola bola baka baka baka, and then you feel your heart, and from दिल से बात आती है कि मुझे तो ये चाहिए, मेरा क्लाइंट सुना नहीं आज मेरे को, इसने समझा नहीं। सो दिस रॉ एनर्जी, द रॉ कंटेंट्स ऑफ योर ओन हार्ट, जब तक आपका थ्रोट और आपका हार्ट कनेक्ट नहीं होता, तब तक आपकी जो है, आप ग्राउंड पे नहीं, आप ग्राउंडेड नहीं फील करते। तो यू ईदर हैव अ नेटवर्क, ओके, विद होम यू कैन स्पीक लाइक दिस, और यू डू इट ऑन योर ओन सेल्फ बिकॉज यू रिक्वायर दैट ग्राउंडिंग। अगर नहीं होगा तो पता है क्या होता है, डी पर्सनलाइजेशन होता है, डी रियलाइजेशन भी होता है, ओके। हमें वक्त लगता है सेंटर करने के लिए, बिकॉज हमारा यहाँ पे ब्लॉक होने लगता है, राइट, यहाँ पे आपका ब्लॉकिंग होने लगता है, आपकी दिल की आवाज़ और आपका खुद का जो थ्रोट है, इनमें कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। इन दिस प्रोफेशन, बाय द वे, लिसनिंग प्रोफेशन है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। वट आई ऑल्सो टेल माई ट्रेनिंग इज टू होल्ड अ सेपरेट section in their notepad or their diary where they are consistently writing or connecting with their emotions and understanding of the flow of this session. कभी कभी हम लिखते हैं ना, देखो क्लाइंट ने भी झूठ बोला, आई कैन सेंस द क्लाइंट लाइट नाइट नाउ, हमें पता होता है और हम बढ़ जाते हैं, बट अगर आप उसको लिख लेते हो तो यू आर कनेक्टिंग स्ट्रांगली टू योर इंट्यूशन, स्ट्रांगली टू योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपको अपने साथ रिश्ता बनाए रखना है, राइट। So and for this also I tell my people that you should always go for breaks. छोटे छोटे ब्रेक आपको लेते रहना है। आपने एक क्लाइंट देखा, दूसरे क्लाइंट के बीच में ब्रेक होना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट कम बैक टू योर होम्योस्टेसिस। ब्रेक लेते रहना है, और कितने टाइम का ब्रेक लेंगे वो आपके ऊपर है, ओके। जनरली हम लोग 1 आवर का ब्रेक लेते हैं फॉर पीपल लाइक अस, ओके। वी टेक 2 आवर्स 3 आवर्स का हमको सेशन करना पड़ता है, सबकॉन्शियस वर्क करना पड़ता है हिप्नोथेरेपी में। तो हम 1 घंटे का जो है ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। आई हैव सीन सम ऑफ माई थेरेपिस्ट्स हु डू योग निद्रा तो अगर आप योग निद्रा के बारे में जानते हो तो वो भी करते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है। एंड पर्सनली मैं केबिन छोड़ देती हूँ, बिकॉज योर एसोसिएशन विद द केबिन बिकम्स ऑफ लिसनिंग, होल्डिंग स्पेस फॉर समवन एल्स, राइट। तो मैं वो एसोसिएशन ही ब्रेक कर देती हूँ, मेरा नर्वस सिस्टम किसी और सराउंडिंग में चला जाता है, तो वो उसके साथ ट्यून इन करने लगता है, राइट। तो कमिंग टू द नेचर ओवर एंड ओवर अगेन, यू नीड टू क्रिएट अ सेफ हेवन इन योर हाउस। पहले तो अपने घर में करना पड़ेगा, और आपको एक सेफ हेवन आपको अपने वर्किंग स्पेस में भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इट कैनॉट बी अ क्लोज्ड एरिया,
और यू गो एंड ब्रेक दैट हेज बाय टॉकिंग टू समवन। किसी से, मैंने कहा किसी से बोलना है, अपनी आवाज़ सुननी है, अपने दिल की आवाज़ जुबान से निकाल करके बोलनी है। समवन हु विल लिसन, समवन हु विल लिसन टू यू। ठीक है, आपको ग्रहण भी तो करना है। तो वो स्पेस, या आप अपने नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, अपने कोलीग से आपने ऐसी बनाई है बातें, तो वो अलग बात है। अगर नहीं की है, जो मैं कहती हूँ, फॉर पीपल लाइक अस, हैव अ ट्री अराउंड यू। एक कोई भी एक ट्री होता है, तो ट्रीज आर वन डायमेंशनल बीइंग्स, ओके, सो दे आर लाइक, मेरे पापा कहते हैं कि ये जो है हमारे एल्डर ब्रदर्स हैं। तो पहले पेड़ आए थे, उसके बाद हम आए थे। तो देयर जॉब इज टू सेफ गार्ड अस, ग्राउंड अस, बिकॉज उनकी जड़ें भी अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ी होती हैं, और दे नो हाउ टू process water as well and sunlight as well, so they have inbuilt mechanism। हम उस mechanism को use कर सकते हैं by connecting with the tree। so वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं जहाँ जहाँ जिस लोकेलिटी में घूमती हूँ, मैं वहाँ पे एक पेड़ मैंने अपने डेजिग्नेटेड बना के रखा है। तो इफ़ अ वेरी हैवी सेशन हैपेंड, और मुझे हैवी सेशन बहुत पसंद आते हैं, तो हैवी सेशन हो गया एंड आई एम नॉट कमिंग बैक टू होम्योस्टेसिस बाय एनी मीन्स, आई गो टू द ट्री। मैंने उन पेड़ों का नाम रखे हुए हैं, अशोक, ठीक है, तो बनियान, ऐसे ऐसे नाम सब रखे मैंने। और उन ट्रीज के पास बेरफुट आपको जाना पड़ता है, एंड गो एंड सिट, जस्ट सिट। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको न्यूरोसिस है, so when they have started befriending a tree, they have felt more grounding, that helps। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इमोशन को प्रोसेस करने के लिए। अगर आपने एक ट्री, आप उसको बोल सकते हो, आई जस्ट टॉक टू द ट्री, राइट, टॉकिंग एंड देन सडनली आई फील वेरी, जैसे लाइट है ना, मेरी ओरिजिनल लाइट वापस मेरे बॉडी में कौनती हुई, फील वेरी coming back to the ground reality for me। ओके, यू कैन ऑल्सो वर्क विथ डिफरेंट एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, वाटर, एयर, फायर, ये 3 एलिमेंट, अर्थ, ठीक है, अर्थ तो आपको यूज़ करना चाहिए हेवीली ग्राउंड करने के लिए खुद को। घास पे चलना होता है खाली पाँव, ठीक है, ये मैं बहुत करती थी इन माई बिगिनर्स डेज। 15 मिनट्स आई यूज टू वॉक, बिकॉज आई यूज टू सी 5 क्लाइंट्स, 2 आवर्स का क्लाइंट मैं देखती थी हर एक क्लाइंट को, ठीक है। और आई वॉज नॉट गेटिंग पेड एट दैट टाइम, तो वो वॉलंटियर वर्क था, तो आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग रिटर्न, राइट। तो मुझे ग्राउंड करने के लिए कोई मटेरियल चीज़ मिल नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो सिर्फ दिया जा रहा है, तो आई हैड टू ग्राउंड माई सेल्फ अ लॉट। और ग्राउंडिंग के लिए आई यूज टू गो फॉर अर्थ एलिमेंट अ लॉट एट दैट टाइम। ग्रेजुअली आई लर्न टू यूज़ फायर, तो आप कैंडल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, दे कीप अ पॉटेड प्लांट एंड दे गो एंड पोर वाटर ऑन द ट्री। जब वो ब्रेक लेते हैं ना अपने क्लाइंट से, तो वहाँ पे बस एक पानी थोड़ा सा डाल देते हैं या पौधे को छू लेते हैं टू कनेक्ट विद द एलिमेंट, ठीक है। कुछ लोग पानी पीते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। दे आर द पीपल हु गेट वेरी इमोशनल पीपल, देयर मेन एलिमेंट और पावर एलिमेंट मे बी वाटर, तो वो पानी पीते हुए भी आपको लोग दिखेंगे। कुछ लोगों को पीना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उनका जो थ्रोट है ना, वो थ्रोट चक्र ओरिएंटेड लोग हैं। यहाँ उनकी अगर नॉटिंग होने लगती है, भारी होने लगता है, तो दे सिप वाटर, ताकि वो चीज़ हलक से नीचे चले जाए। तो आप अपना देखिए 5 एलिमेंट्स में से आपको कौन सा काम देता है। फॉर हिप्नोथेरेपिस्ट वी एंगेज इन ईथर अ लॉट, ठीक है, वॉइड वाली एनर्जी हम बहुत यूज़ करते हैं, तो हम उसको अब यूज़ नहीं कर पाते, उसको हमें रात को करना पड़ता है व्हेन वी मेडिटेट, और योग निद्रा में करना पड़ता है। यू कैन ऑलवेज हैव फायर, सो आई यूज टू हैव लाइट अ कैंडल फॉर अ स्पेसिफिक क्लाइंट ऑफ माइंड, जिसका सेशन आई थिंक 9 सेशंस चले गए, क्योंकि हमारे तरीके में 8 सेशन से ज़्यादा हम लेते नहीं हैं एक इशू के लिए। तो इसका 9 इश्यूज़ तक हमारा, मुझे याद है, चला गया था, सॉरी 9 सेशंस चले गए थे। आई वॉज अ वेरी हैवी केस, आई कुड सेंस दैट कि उसका पेन, मेरा पेन ऑलमोस्ट शैडो वर्क, शैडो बहुत क्लोज हो गए थे। तो मुझे वापस अपनी एनर्जी में आने के लिए आई नीडेड अ फायर एलिमेंट, सो आई यूज्ड कैंडल।
और उस कैंडल के लाइट में बहुत मतलब हमें ना साइकिक कंटेंट्स मिंगल नहीं होते थे. I could sense it. I could tell my client as well. तो my client also was like, yes, it is working for me. You can also have incense stick. मैंने कहा ना आपका रूम कंटिन्यूसली क्लियर होना चाहिए. जिस केबिन में आप क्लाइंट सेशंस लेते हो, हर एक क्लाइंट से पहले और हर एक क्लाइंट के जाने के बाद वो केबिन क्लीन होनी चाहिए. तो आप खिड़की दरवाजा खोल करके इंसेंस यूज़ कर सकते हो. पीपल यूज सेज इज वेल. हम लोग सेजिंग किया करते थे. हैविंग अ कैंडल ऑल्सो वर्क्स. इट कंटिन्यूसली क्लियर्स द एनर्जी. हम लोग हिप्नोथेरेपिस्ट, हम लोग को एनर्जी मैनिपुलेशन आता है, तो हम लोग ऑटोमेटिकली हमने एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम भी बाद में एडवांस स्टेज में हमने रख दिया था. बट फॉर यू टू फील ग्राउंडेड, यू एनी विच वे विल हैव टू लीव द केबिन एंड देन कम बैक विद अ न्यू एनर्जी बाय द वे. ठीक है. और एक चीज़ होती है, कहते हैं ऑरा को लॉक करना. तो ऑरा इज व्हाट इज ऑरा? ऑरा इज द फील्ड. तो आपके बॉडी में जितने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आते हैं उसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट होती है, तो उसको हम लॉक कर देते हैं. तो लॉकिंग कैसे होती है? लॉकिंग होती है फ्रॉम द नेवल. सो यू प्लेस एनी ऑफ योर palm, left palm, yeah, so the left palm is receiving, so it is something that is going to hear you, and the right palm is something that will act on it. So you put your right palm over your navel, breathe in and breathe out, settle down, connect your head. Okay, imagine an imaginary line going straight from your crown, entering your head, coming to your throat, piercing your heart, moving through your heart, coming to your solar plexus, moving to your navel, from your navel to the ground. Just an imaginary line so that everything aligns. Okay, now place your palm on your navel. Yeah, and say lock. Okay, close the field, lock the field. You can say that, or you say I'm protected. Okay, completely protected. So this can also work for you. Okay, and finally you need to have a morning ritual. I said है ना, आपका morning ritual होना चाहिए, आपका एक नाइट रिचुअल होना चाहिए. तो जब आप सोने जाते हो उसका एक रिचुअल आपको अपने लिए स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड बनानी है. मेरे रिचुअल में आता है लिम्फ ड्रेनेज. गूगल, वॉच as many contents as possible on the lymph draining exercises. Okay, तो लिम्फ मैं कहाँ का ड्रेन करती हूँ, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू ना, मेरा ये वाला एरिया, बिकॉज इमोशनल एरिया बहुत एंगेज होता था पहले, तो आई डू अ लिम्फ ड्रेनिंग ऑफ माई दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, आप लोअर बैक का कर सकते हो. यू कैन ड्रेन द एरियाज फ्रॉम योर फीट, क्योंकि आपको बैठना पड़ता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है. द मोर मूवमेंट यू ब्रिंग इन टू योर लाइफ स्टाइल, उतना कम टाइम आपको लगेगा अपनी एनर्जी को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि आप अपने कंटेंट्स को प्रोसेस करने के लिए कम टाइम लगाते हो. आपका क्लाइंट जो भी आपकी एनर्जी फील्ड के संस्पर्श में आएगा उसको भी कम टाइम लगने लगेगा अपने इमोशंस और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या प्रोसेस करने के लिए, सॉल्व नहीं, प्रोसेस करने के लिए. तो आप नोटिस करोगे द मोर गुड यू आर इन द क्रिएशन, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन वाला सेक्शन, दिन का शुरुआत करना, प्रोसेस करना, मैनेज करना और एंड करना इफिशिएंटली, साइकिल्स जितने अच्छे आप अपने करने लगोगे, आपके क्लाइंट्स भी उतने कम टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे. मतलब उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हुए आपको लगेगी. ठीक है, आपको ऐसे लगेगा कि इतना टाइम नहीं लगा ना इस वाले इशू को, उतना टाइम नहीं लगा. यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द प्रॉब्लम फास्टर नाउ. सेटिस्फैक्शन उतना ज़्यादा होगा आपके क्लाइंट को, उतना कम चांस होगा कि आप उसकी बाउंड्री को ब्रीच करो या वो आपसे सस्टेनेंस ले सके. ठीक है, बिकॉज यू आर साइक्लिंग इन योर एनर्जीज, कंटिन्यूस रोटेशन चल रहा है. आपके क्लाइंट को वो टाइम ही नहीं मिलेगा, या किसी और की एनर्जी को वो टाइम ही नहीं मिलेगा आपकी बाउंड्री ब्रीच करने के लिए.
समझ में आ रहा है? एनर्जेटिक अंडरस्टैंडिंग्स की ये है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी में मूव करोगे तो कोई और रैम्पेंट फ्रीक्वेंसी नॉइज आपकी ज़िंदगी में एंट्री नहीं करती। तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट साइकिक प्रोटेक्शन, दैट इज मोर ऑफ कोर्स, बट इट्स समथिंग जो जनरलाइज्ड नहीं है। जितना मैं जनरलाइज कर सकती थी आई टॉक्ड अबाउट इट। ओके, जनरली जब हमारे यहाँ क्लाइंट्स स्टूडेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको भी सिखाया जाता है बाय द वे साइकिक प्रोटेक्शन। तो वो उनकी पर्सनलाइज्ड होती है। हम बच्चों को देख करके उनकी गतिविधियों को समझते हुए हम उन्हें स्पेसिफिक बात बताते हैं कि देखो आप ये ट्राई करिए, आपका यहाँ पे फंस रहा है कहानी। हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ आपकी एनर्जी लीक हो रही है, यहाँ आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, यहाँ आप कम कर रहे हो, तो एनर्जी कैसे मैनेज करनी है। तो दिस आर वेरी स्पेसिफिक एंड इसके लिए आपको पर्सनली बैठना पड़ता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ जनरलाइज चीज़ें बताई गई हैं। आप उन्हीं चीज़ों को गूगल करें, थोड़ा समझें, अपना ज्ञान विस्तारित करें, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस content, okay, do like, share and subscribe and let me know in the comment section, ठीक है। I would really love to know. Thanks for listening to me today. Bye.